I've started a batch from 10th of October, which is question answer batch, of indirect tax for December 2021 students. For December 2021 students, am I clear? And in this batch, I will be covering almost 400 questions, which will include MTP, RTP, past exam question papers, study material and everything, and we'll understand the questions conceptually. Conceptually समझेंगे. Timing of the batch would be 7 p.m. to 8:30 p.m. Clear? And यहाँ पे इसके benefits क्या है? You'll be getting live classes on the spot, offline backup of the classes, और आपको हर classes के 2 views मिलेंगे. Fees is not even peanuts. It's 1,999 with hard copy, which will get courier and delivered to your place, door-to-door step delivery, but that will be black and white copy. If you want a colored copy, it is 2,400 the batch fees, and if you don't want material, it is 1,750. But we will not be providing any soft copy. Am I clear? If you want to connect with us, this is the contact number 9022911770, 9422124885, 9823019063. Either you can WhatsApp on this number or you can call on this number, and we'll share with you the required details as how to enroll the batch. So this batch will be available on YouTube till 13th of this month, as in till Wednesday, and then after Wednesday it will be on a platform which can be viewed only by those students who have taken the admission in this batch. Okay? Okay? Clear? So do subscribe our channel, do like it, do share it. Okay. Hi Saroj, hi Vaibhav, hi Mohit, hi Kaushik, Anup, hi Saranya, hi Nikita, hi Prakash. How change dark? 2 दिन और, ठीक है. तो yesterday we are done with chapter 1. Chapter 1 हमारा yesterday हो चुका है. अब हम क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, और चैप्टर 2 में वी वर डन विथ फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. हैव यू पीपल रिवाइज्ड? सी, ये मेरा हो रहा है. हाय भरत, ये मेरा हो रहा है. आई एम टीचिंग, माई जॉब इज गेटिंग ओवर, योर जॉब इज गेटिंग स्टार्टेड व्हेन आई एम डन विथ माई जॉब. आपका काम चालू होता है जब मेरा काम खत्म होता है. तो आपको वापस सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करते वक्त यू आर गोइंग टू सॉल्व एज इफ यू आर राइटिंग द एग्जाम. आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है समझ में आ गया, करने जाते तो याद नहीं आता. गेटिंग माय पॉइंट? Am I clear? So let's start with fifth question. Satyamev Printers is a printing house registered under GST. It receives an order for printing 5,000 copies of a book on yoga and meditation authored by a well-known yoga guru. The content of the book is provided by yoga guru to Satyamev Printers. It's agreed that Satyamev Printers will use his own paper to print the said books. मतलब पेपर भी सत्यमेव प्रिंटर का, प्रिंटिंग भी सत्यमेव प्रिंटिंग की. मतलब वो मुझे गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहा है. यस और नो? वो मुझे गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ GST एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स बाय Satyamev Printers, assuming that GST applicable on printing services 18%, whereas on paper is 12%. आंसर करो. लेट मी सी, क्या मुझे वो आंसर मिलता है जो मुझे चाहिए? लेट मी सी, डू आई गेट दैट आंसर विच आई वॉन्ट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाई PM, हेलो PM. आंसर, डू आई गेट दैट आंसर व्हाट आई वॉन्ट? आंसर करो. क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? 18% ओके. और कुछ आंसर दोगे मुझे? इसमें तो मैं आपको मार्क्स दूंगी नहीं.
मैं तो मार्क्स नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल मार्क्स नहीं दूंगी। मेरे स्टूडेंट्स को मैं अगर टेस्ट दूंगी तो मैं 0 नंबर दे दूंगी। आई हैड टोल्ड यू पीपल यस्टरडे ओनली कि बॉस ये सर्कुलर नंबर याद करो, 11/11/2017, 11/11/2017, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये सर्कुलर नंबर से इट इज क्लैरिफाइड दैट अगर कंटेंट मेरा है और मेरा कंटेंट यूज करके सामने वाला अपना पेपर पे उसको प्रिंट करके दे रहा है, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। मोहित पर ये क्लैरिटी किसने दी है? ये क्लैरिटी ये सर्कुलर नंबर ने दी है। तो अंटिल एंड अनलेस अदिति, अगर आप लोग ये सर्कुलर नंबर नहीं लिखोगे, यू कैन एक्सपेक्ट मार्क्स। बॉस अंडरस्टैंड करो, दिस आंसर्स आर गिवन बाय ICAI, दिस इज गिवन बाय ICAI। तो ICAI अगर ये सर्कुलर नंबर लिख रहा है मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा है। क्लियर? या same question Gaurav but different way. Next, question number 6. Sudama answer following questions. Sudama Associates, a registered supplier, disposes the computer owned by the business without consideration and does not claim ITC on such computers. Examine whether the disposal of computers by Sudama is deemed supply under Schedule 1 of CGST Act. Answer, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? 2 नंबर कट जाएंगे, 2-2.5 नंबर, 2 नंबर तो कट जाएंगे। मोहित आंसर करो, आंसर करो। आंसर करो, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? क्या ये डीम सप्लाई? वाई नो गौरव, वाई नो, वाई नो, वाई नो, गिव मी रीजन, वाई नो। रीजन तो वाई नो। Yes, I wanted this answer. सारे ने जो आंसर दिया, नॉट अ सप्लाई एज ITC नॉट अवेल्ड। बॉस सेक्शन 7(1)(c स्केड्यूल 1 बोलता है, पैरा 1 बोलता है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट विदाउट कंसेशन वुड बी सप्लाई ओनली व्हेन उस असेट के परचेज पे जो टैक्स पे किया होगा उसका आपने ITC लिया होगा। कहाँ से निकिता डेप्रिसिएशन की बात आ गई? What reasoning you're giving, बच्चे? You are a part of my regular batch. It will be supply only when you have taken ITC on the purchase of computers. Clear? तो यहाँ पे आपके आंसर में 7(1)(c होना चाहिए। क्लियर? 7(1)(c लिखो, Schedule 1 लिखो। Am I clear? Am I clear? ये हमारा A हो गया, getting my point. I hope you people are getting my point. Next question. B question. Prithvi Enterprise appoints Champak to procure certain goods from the market. Champak कौन है पृथ्वी का? Champak कौन है पृथ्वी का? Prithvi Enterprises appoints Champak to procure certain goods from the market. Who is पृथ्वी एंड चंपक? तो पृथ्वी प्रिंसिपल हो गया, चंपक एजेंट है। पृथ्वी कौन है? प्रिंसिपल। चंपक कौन है? एजेंट है। पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स चंपक टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब चंपक पृथ्वी के बिहाफ पे कुछ गुड्स परचेज करने वाला है। चंपक identifies various suppliers who can provide the goods as desired by Prithvi and ask a supplier, Satya Manufacturers, to send the goods and issue the invoice directly to Prithvi Enterprise. Am I clear? You are required
to determine whether Champak can be considered as an agent of Prithvi Enterprise in terms of Schedule 1? आंसर करो, मैं अपना आंसर बाद में दूंगी, आप लोग के क्या आंसर है समझने दो मुझे. Hi Rinki. This is a batch which will be on YouTube till Wednesday only. After that, it's a paid batch. So the one who has taken the enrollment will be able to see after Wednesday. आंसर करो, आंसर करो, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या सेक्शन 71C शेड्यूल 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे सेक्शन 71C शेड्यूल 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes or no, please tell me. Yes or no, please tell me. पृथ्वी ने चंपक को बोला गुड्स परचेस करके दो, चंपक ने सत्या मैन्युफैक्चरर्स को बोला आप एक काम करो डायरेक्टली इनवॉइस पृथ्वी के नाम पे बना दो. एग्जैक्टली करेक्ट सारण्या. सी अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो, इंपॉर्टेंट है ये. चंपक ने सत्या, पृथ्वी. अगर यहां पे सत्या इनवॉइस अगर रेज करता, चंपक के नाम पे करता, तो फिर यहां पे ये सप्लायर हो जाता और ये रेसिपिएंट हो जाता. और आगे अगर चंपक पृथ्वी को विदाउट कंसिडरेशन अगर पृथ्वी को देता तो इसको डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 71C शेड्यूल 1 पैरा सी में मानते और डीम टू बी सप्लाई है, तो वैल्यूएशन के लिए हम रूल 29 पे जाते. यस और नो, यस और नो. पर क्योंकि ये इनवॉइस डायरेक्टली सत्या ने पृथ्वी के नाम पे बनाया है, तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे वो प्रिंसिपल एजेंट वाला पॉइंट आएगा ही नहीं. कॉपी दिस डायग्राम. अगर इनवॉइस चंपक के नाम पे होता तो फिर चंपक के गुड्स हो जाते हैं, और चंपक अगर आगे पृथ्वी को विदाउट कंसेशन देता तो फिर उसको डीम सप्लाई मानते हैं. और डीम सप्लाई है तो विदाउट कंसेशन, तो वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन रूल्स में जाना पड़ता, रूल 29 लगता. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी. क्लियर? आंसर पढ़ू मैं? ड्रॉ कर लिया? आंसर पढ़ू मैं? नहीं, प्योर एजेंट की बात कहां से आ रही है? यहां पे प्योर एजेंट क्यों आया गौरव? यस, ये सप्लाई प्रिंसिपल की मानी जाएगी कि सत्या सप्लायर और पृथ्वी रेसिपिएंट है. ओके. सी इन द गिवन केस चंपक इज ओनली एक्टिंग. ये लैंग्वेज देखो, चंपक कौन है? सिर्फ प्रोक्योरमेंट एजेंट है एंड देयर इज नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स. Invoice being used in the name of Prithvi Enterprise and not Champak. Hence, Champak is not an agent of Prithvi for the supply of goods in term of Schedule 1. Am I clear? Am I clear? Am I clear? Boss, yes. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में भी जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो डायग्राम बनाते चले जाया करो कि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Ajat Satru Industries entered into a contract with an actor Chandragupta to act as a brand ambassador of product manufactured by Ajat Satru.
The duration of contract is 5 years and the contract fee payable to Chandragupta for being a brand ambassador is rupees 50 lakhs per annum. मतलब 1 साल का 50 लाख, 5 साल का कितना हो गया, 2.5 करोड़. As per terms of contract, in case the contract is terminated by Chandragupta before the end of contract period, Chandragupta will have to repay Ajatasattu 50% of the contract fee received by him till the time of termination of contract. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो आपने जितना भी रिसीव किया होगा उसका 50% आपको वापस करना पड़ेगा. Yeah. At the end of 3rd year, Chandragupta terminates the contract with Ajatasattu. He has received the contract fee for 3 years at the time of termination of contract. तो 3 साल का 1.5 करोड़ रुपए मिला होगा उसको. You require to determine whether the given transactions qualify as supplies or not. Let me see क्या आंसर देते हो, क्या होगा इस क्वेश्चन में. क्या ये सप्लाई है या नहीं है, रिप्लाई करो. क्या ये सप्लाई है या नहीं है, रिप्लाई करो. लेट मी सी आप लोग क्या आंसर देते हो. सी आई हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट आप लोग क्या आंसर देते हो. तो आई विल कम टू नो वेयर आर यू पीपल गोइंग रॉन्ग. अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू पीपल. आंसर करो. आंसर इट राइट नाउ. जल्दी जल्दी चौल्दी बोलो, चौल्दी. क्या आंसर दोगे. अजातशत्रु और चंद्रगुप्ता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 50 लाख रुपए, साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अगर चंद्रगुप्ता टर्मिनेट कर देगा तो उसको 50% वापस करना पड़ेगा. व्हाट विल बी योर आंसर्स, व्हाट विल बी योर आंसर्स, रिप्लाई. मोहित कह रहा है सप्लाई है बिकॉज टॉलरेंस ऑफ एक्ट है. प्रकाश बोल रहा है ये सप्लाई है. मुझे अभी भी मजा नहीं आया. आधे नंबर मिलेंगे. सप्लाई तो है, टॉलरेंस ऑफ एक्ट है. ओके. डोंट यू पीपल फील दैट यू पीपल आर मिसिंग समथिंग. अनूप तुम लोग एक गलती कर रहे हो. पहले तुम्हें बोलना चाहिए कि चंद्रगुप्ता सर्विस दे रहा है एक्टिंग एज ब्रांड एम्बेसडर, am I clear, टू अजातशत्रु, और अजातशत्रु 50 लाख पर एनम पे करेगा. ये एक सर्विस है. दूसरी सर्विस, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो अजातशत्रु टॉलरेट कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए आपको 75 लाख वापस करना पड़ेगा. तो ये दूसरी सर्विस है. और पहली वाली 7(1)(a) के हिसाब से है और दूसरी वाली 7, कौन सा पॉइंट, जल्दी बोलो. दूसरी वाली कहाँ लिखी है. 7(1)(a) शेड्यूल 2 के हिसाब से. गेटिंग माई पॉइंट. डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. वापस समझाती हूँ अभिषेक, डोंट वरी. या कहाँ लिखा है. सी आरसीएम की लिस्ट स्पेसिफिक लिस्ट है. अगर आरसीएम में ब्रांड एम्बेसडर नहीं है तो नहीं है, मतलब एफसीएम. अभिषेक क्वेश्चन क्या है कि अजातशत्रु, ये क्वेश्चन क्या है कि अजातशत्रु ने चंद्रगुप्ता के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि चंद्रगुप्ता विल एक्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर. तो यहाँ पे पहली सर्विस कौन दे रहा है. इसका ऐसे पता था कि चंद्रगुप्ता पहले क्या दे रहा है, ब्रांड एम्बेसडर की सर्विस दे रहा है. किसको दे रहा है, अजातशत्रु को. ऐसे केस में ये 7(1)(a) सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर कंसेशन बाय अ टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 7(1)(a) के हिसाब से. अब क्योंकि ब्रीच हो गया, तो ब्रीच हुआ तो अजातशत्रु क्या कर रहा है, आपने जो ब्रीच किया है उसे सहन कर रहा है और सहन करने के लिए आपसे डैमेजेस चार्ज किया है, तो वो एज पर सेक्शन 7(1)(a) शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस है. गेटिंग माय पॉइंट. शुभम बैच स्टार्टेड yesterday. इट्स अ पेड बैच टिल वेडनेसडे. इट्स यूट्यूब पे अवेलेबल. उसके बाद ये पेड प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी. क्लियर. अब समझा कैसे लिखना है. मोहित, सरोज, इज दिस नाउ क्लियर.
Is this now clear? Please tell me. समझा कि नहीं समझा? सेवन वन ए नहीं, 7-1 की ब्रैकेट में कैपिटल ए. गौरव, if you write wrong section in a, if you write section in a wrong manner, you will not get marks. Okay, next question. Shivaji Private Limited, a registered supplier, supplies following goods and services for construction of building and complexes. Thanks, Gaurav. Shivaji Private Limited, a registered supplier, supplies the following goods and services for construction of building. Okay, supplier है ये. Excavators for required period at a per hour rate, manpower for operation of excavators at a per day rate, soil testing and seismic evaluation at a per sample rate. ये 3 सर्विस देता है वो. Correct, Gaurav. The excavators are invariably hired along with operators. Similarly, excavators operators are supplied only when excavators is hired out. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? आंसर करो. करेक्ट सरोज, करेक्ट. आंसर करो. इस लाइन का क्या मतलब है? Excavators are invariably hired along with operators. Similarly, excavators operators are supplied only when excavators is hired out. आंसर करो. इस लाइन का क्या मतलब है? करेक्ट. इसमें कंपोजिट सप्लाई, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? वापस, excavators are invariably hired along with operators. Similarly, operators are supplied only when excavators is hired out. इस लाइन का क्या मतलब है? जब एक्सकेवेटर्स लेंगे तभी ऑपरेटर्स मिलेंगे, और ऑपरेटर्स बिना एक्सकेवेटर्स के नहीं मिलेंगे. मतलब ऑपरेटर्स इज एंसिलरी टू एक्सकेवेटर्स. नेचुरल बंडलिंग है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल सप्लाई एक्सकेवेटर्स का रहेगा. तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट किसको लगेगा? ऑपरेटर्स को लगेगा. यस और नो? क्लियर? तो देखो, एक्सकेवेटर्स के हाई चार्जेस पर 18 लाख मिले आपको, मैन पावर के लिए आपको 20,000 रुपये मिले, एंड टेस्टिंग के लिए आपको 2.5 लाख रुपये मिले. अब इनका कहना है कि एक्सकेवेटर्स पे 12% का जीएसटी है, एंड मैन पावर पे एंड सेसमिक के ऊपर 18% का जीएसटी है. आप लोग किस पे क्या रेट लगाओगे बताओ मुझे. एक्सकेवेटर्स पे कितना रेट लगाओगे? एक्सकेवेटर्स पे कितना रेट लगाओगे? जल्दी बताओ. एक्सकेवेटर्स पे कितना रेट लगाओगे? एक्सकेवेटर्स पे क्या रेट लगाओगे? बोलो बोलो. 12%. परफेक्ट. मैन पावर ऑफ ऑपरेशन फॉर एक्सकेवेटर्स पे क्या रेट लगाओगे? मैन पावर पे क्या रेट लगाओगे? मैन पावर पे क्या रेट लगाओगे? और सेसमिक एंड टेस्टिंग पे क्या रेट लगाओगे? सॉइल टेस्टिंग एंड सेसमिक इवैल्यूएशन पे क्या रेट लगाओगे? परफेक्ट शुभम. शुभम ने एक बात में खत्म कर दिया. 12% on excavators and operators and 18% on soil testing. Superb. प्रेजेंटेशन देखो बॉस. कभी भी आप क्वेश्चन करोगे,
आपके कॉलम्स का बहुत मायने रखता है. कंप्यूटेशन of GST payable by Shivaji Private Limited, particulars, value, rate. और यहाँ पे क्योंकि ICS की बात नहीं करी तो एक ही रेट आएगा. 18 लाख पे 12%, 20,000 पे 12%, 2.5 लाख पे 18%. टोटल GST लाइबिलिटी कितनी आई? 263,400 आई. और आपको ये नोट लिखना पड़ेगा और नोट में एक ही सेक्शन जाना कंपलसरी है कि ये कौन सा सप्लाई है. कंपोज सप्लाई है. कंपोज सप्लाई में जो प्रिंसिपल का रेट होगा वही लगेगा. जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे. जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Have a habit of quoting sections, have a habit of quoting notification number, have a habit of quoting circular number. Luckily हमारे पास कोई ज़्यादा केस लॉज नहीं है तो बचे हुए हम लोग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन. Vikramaditya is a salaried employee and is planning to invest in stocks. He has opened a trading account with Vaidya Brokers. During the month, Vikramaditya undertook 3 future contracts without physical delivery option but are cash settled on the expiry of contract date, amounting 35 lakh rupees. Vikramaditya needs your advice whether such future contracts undertaken by him amount to supply and are liable to GST or not. Reply करो. विक्रमादित्य सैलरीड एम्प्लॉई है, उसने स्टॉक परचेस किए, उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया जहाँ पे जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, सिर्फ कैश सेटलमेंट होगा. क्या ये सप्लाई है या नहीं है कंफर्म करो. क्या ये सप्लाई है या नहीं है कंफर्म करो. Is this supply or not? Please confirm. Why no? गौरव wrong reason. गौरव स्केड्यूल 3 बोल के रीजनिंग गलत दे रहे हो. रीजनिंग गलत दे रहे हो. रीजनिंग गलत के भी नंबर कट जाएंगे. Yes, these are securities and securities are neither goods nor services. सचिन ये सप्लाई नहीं है. सप्लाई क्यों नहीं? क्योंकि गुड्स नहीं है. सी करेक्ट. फॉर ट्रांजैक्शन टू फॉल अंडर सप्लाई it must be either goods or service or both. The definition of term goods and service specifically excludes securities from the purview. Further, derivatives are included in the definition of securities. As derivatives falls under definition of securities, they are neither goods nor services. Am I very clear? तो अगर आप रीजनिंग गलत लिखोगे डोंट एक्सपेक्ट मार्क्स. शेड्यूल 3 तो क्या होता है? जो सप्लाई है पर उसको ने बोला कि दे आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर? 10th क्वेश्चन. आज मैं सप्लाई चैप्टर खत्म कर दूंगी. अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. एज एन इंसेंटिव, Angad Private Limited pays an amount of 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. The incentive is a part of the salary of the employees and applicable tax is deducted at source as per relevant income tax provision. Angad Private Limited is of the view that GST is not liable on such incentives paid to employees. Whether the view taken by Angad is correct or not. समझ गई थी मैं गौरव. समझ गई थी मैं. मैम अगर सर्विस प्रोवाइडर बोला कि मैं एक्सकेवेटर्स और ऑपरेटर्स को एक साथ ही मिलेगा और सॉइल टेस्टिंग भी हम देंगे और फर्म सॉइल टेस्टिंग अलग से प्रोवाइड करती है तो नहीं. मिक्स सप्लाई के लिए शुभम
सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि एक सिंगल प्राइस होनी चाहिए, वन प्राइस फॉर ऑल. अगर वन प्राइस फॉर ऑल नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई हो ही नहीं सकता. सारण्या रॉन्ग, सारण्या रॉन्ग 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 रॉन्ग. Think again, Saranya. Shubham, I hope you have got the answer. Shubham, I hope you got the answer. Yes, Anup. Saranya, ये गिफ्ट नहीं है, इंसेंटिव्स है. इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी. अरे बट वाई यू पीपल आर लिंकिंग 50K? एग्जैक्टली, आपको 50K को लिंक ही नहीं करना है. 50K की बात कब आती है? जब एम्प्लॉयर इज गिविंग समथिंग टू एम्प्लॉय एज गिफ्ट, या तो सैलरी दे रहा है वो. आप 50K में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट. आई होप यू गॉट द आंसर. आपको इसको 50K से लिंक ही नहीं करना है. एम्प्लॉय गिविंग सर्विसेज टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गेटिंग सैलरी. गेटिंग सैलरी, बात खत्म. क्लियर? इट इज अंडर शेड्यूल 3. क्लियर और नॉट क्लियर? Saranya? Yes, employer-employee relationship. Clear? या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में फर्क होता है. करेक्ट अनूप? आगे बढ़ू. नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन. इस 11th क्वेश्चन के आगे लिख दो. चलो ठीक है, पढ़ा सकते हैं. नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर्स sends certain category of yarn for processing to the job worker. The job worker undertakes the processing work on the yarn as per requirement of Nandeshwar manufacturers. During the process, the job worker uses his own material also. The processed yarn is sold by Nandeshwar directly from the job worker's premises. Balanced quantity of yarn and waste material sent back by the job worker to Nandeshwar manufacturers. The job worker is of the opinion that he is using his own material also in the processing, and hence the supply to Nandeshwar is in the nature of supply of goods as well as supply of services. Do you agree with this opinion of the job worker? वापस रिपीट कर रही हूँ. नंदेश्वर ने जॉब वर्कर को कुछ यार्न भेजा प्रोसेसिंग करने के लिए. जॉब वर्कर उस पर प्रोसेसिंग कर रहा था, जो यार्न दिया, और अपना मटेरियल भी यूज़ कर रहा था उस प्रोसेसिंग में. फिर वहाँ से कुछ मटेरियल वहाँ से ही नंदेश्वर ने बेच दिया, और जो बचा हुआ था वापस अपनी फैक्ट्री में मंगवा लिया. अब जॉब वर्कर का कहना है क्योंकि मैं जॉब वर्क भी करके दे रहा हूँ और क्योंकि मैं अपना माल भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों कर रहा हूँ. सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों कर रहा हूँ. टेल मी, इज जॉब वर्कर्स ओपिनियन करेक्ट और नॉट करेक्ट? रिप्लाई. आंसर, आंसर करो फटाफट. क्या आंसर दोगे? जल्दी बताओ. According to Aditi, only supply of service. Aditi, I just don't want the answer. I want the reasoning. कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है? Okay, you all are giving correct answer, but where it is written? Boss, clearly. Yes.
पैरा 6 किसका है शुभम? पैरा 6 किसका? सपना थोड़ी आएगा मुझे। बॉस स्केड्यूल 2 में क्लियरली बोल दिया है कि जॉब वर्कर चाहे, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैंने एग्जांपल दिया भी था। सपोज मैं टेलर हूँ, आपने मुझे अपना कपड़ा दिया और बोला कि इसके शर्ट सिल दो। अब क्या धागा भी आप दोगे, बटन भी आप दोगे? नहीं ना, तो धागा मेरा, बटन मेरा, कपड़ा आपका, मैं कौन? जॉब वर्कर। अब सपोज मैंने 1000 रुपीज़ चार्ज किया, तो 1000 रुपीज़ बेसिकली जब मैं चार्ज करूँगी, इसमें कहीं ना कहीं मैंने धागा और बटन को ऐड कर लिया होगा, तो ये 1000 पूरा क्या है? इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। 7(1)(a) और शेड्यूल 2 आपके आंसर में आना कंपलसरी है। इनफैक्ट आपके आंसर में 7(1) भी आना चाहिए, क्योंकि 7(1)(a) क्या बोलता है? 7(1)(a) क्या बोलता है? जो सप्लाई है एज पर 7(1) उसको मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। 7(1)(a) अपने हिसाब से किसी को सप्लाई नहीं बोल सकता। जो ऑलरेडी सप्लाई है एज पर 7(1) उसको आइदर गुड्स बोलूंगा या सर्विस बोलूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Am I clear? Correct? Next question. 12th question. Moksha Bhumi Industries has its manufacturing unit in the state of Maharashtra. Okay, वापस रिपीट कर रही हूँ। Moksha Bhumi Services Industries has its industries unit in the state of Maharashtra. It stores the finished goods manufactured by it in a depot located in Gujarat. The depot is owned by Punya Bhumi Limited, a related person of Moksha Bhumi. Punya Bhumi Limited has not charged any concession from Moksha Bhumi Industries for usage of depot of storage purpose. Whether the storage of goods permitted by Punya Bhumi to Moksha Bhumi Industries qualify as supply under GST or not? करेक्ट शुभम? मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को। मोक्षा भूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. It stores the finished goods manufactured by it at a depot located in state of Gujarat. The depot is owned by Punya Bhumi, a related person of Moksha Bhumi. Punya Bhumi has not charged any concession. Will it be a supply or not? According to Vijay, no. Okay. According to Prakash, yes. जो भी है. नहीं जरूरत है सरोज, नहीं जरूरत है. Don't worry. Why no, Vijay? Can you give me reason? Why no? Why no? Can you people give me the reason? It is supply. Boss, पुण्य भूमि का क्या डेपो है? वो डेपो सबको देता होगा जगह. वो किसको, मतलब ही इज डूइंग दैट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब यहाँ पे किसको दिया है? मोक्षा भूमि को, विच इज रिलेटेड पार्टी. तो इनका क्या कहना है? इफ यू आर गिविंग 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2, अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है या सर्विसेज किया है, किसको किया है? रिलेटेड पार्टी को किया है कि डिस्टिंक्ट पर्सन को किया है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, विदाउट कंसेशन किया है, तो इट इज सप्लाई. एंड यहाँ पे आप वैल्यूएशन रूल्स में जाओगे एंड रूल नंबर 28 पे जाओगे. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
ना 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 ना, स्टॉक ट्रांसफर नहीं होता है. स्टॉक ट्रांसफर कब होता, जब सेम स्टेट में होता है. ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए. एक महाराष्ट्र में, गुजरात में है. वेट वेट, समझो समझो, मैं समझाती हूँ. उसका क्या कहना है कि मोक्षा भूमि ने पुण्य भूमि को दिया. ये महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में है. इनका कहना है खुद का ही है, तो आप इसको स्टॉक ट्रांसफर बोलते हो, पर स्टॉक ट्रांसफर नहीं है ये. स्टॉक, इट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. गेटिंग माई पॉइंट? Clear? Okay. Next question. 13th question. I am giving you people a homework over here. फिर भी देखते हैं किसको पता है. Rob Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into a transaction where certain securities were to be lent to Dhanadhan Bank under security lending scheme. रॉब शेयर होल्डिंग ने क्या किया, एक इंटरमीडियरी है जिसने हैज एंटर्ड इनटू एन ट्रांजैक्शन वेयर इन सर्टेन सिक्योरिटीज वर टू बी लेंड टू धनादन बैंक. अच्छा, सिक्योरिटीज किसको लेंड कर रहा है? धनादन बैंक को. धनादन बैंक शैल पे स्पेसिफाइड लेंडिंग फी अगेंस्ट सच लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू इट. एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम. ये बार बार आरसीएम क्यों आ रहा है? ये कहाँ लिखा है? बोलो मुझे. नो, पहले तो मुझे समझाओ यहाँ हो क्या रहा है. सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होता है? सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम फैसिलिटेट्स द लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ सिक्योरिटीज. Securities are neither goods nor service. Therefore, transaction of security involves disposal of securities is not a supply, hence not taxable. However, security lending scheme doesn't treat lending of securities as disposal of securities, and therefore it is not excluded from the definition of service. The lending fee charged from the borrower of securities has a character of consideration and is taxable in the GST. Apart from above, the activities of the intermediary facilitating lending and borrowing for commission is also charged separately. Answer karo. Are you people getting this point or not? Shubham, securities हैं. Securities are neither goods nor services. Securities में डील करना. They are neither goods nor services. Read the question. यहाँ पे सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या लिखा है? Facilitates the lending of and borrowing of securities. You can lend, you can borrow securities. Securities neither covered under definition of goods nor services. Neither वो goods है nor वो services है. Therefore, a transaction in securities which involves disposal of securities is not a supply under GST, hence not taxable. ये समझा कि नहीं समझा? क्योंकि जीएसटी लगने के लिए गुड्स या सर्विस कुछ एक तो होना चाहिए. ओके, वेट.
या तो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज, ओके, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व डिस्पोजल, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ गई. हाउएवर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम doesn't treat, correct, lending as disposal and therefore is not excluded from the definition of service. The lending fee charge, okay, got it. Yeah, basically disposal की बात है. Yeah, no. Lending, एक होता है lending और एक होता है disposal. Disposal is neither goods nor service. Lend करना, करेक्ट. डिस्पोज ऑफ कर देना मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर देना. लेंड किया मतलब मैंने आपको सिर्फ यूज करने के लिए दिया है. लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट डिस्पोजल, हैंस इट इज नॉट एक्सक्लूडेड. आई होप यू गॉट द पॉइंट. समझो. सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या बोलता है? आप लेंड कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, मतलब आप सिर्फ राइट टू यूज दे रहे हो. अगर आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया होता तो उसको मैं सिक्योरिटीज बोलती, और सिक्योरिटीज इज आउटसाइड सप्लाई. पर यहाँ आपने डिस्पोज ऑफ ना करके आपने सिर्फ रेंट पे दिया है, और रेंट पे दिया है तो आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? लेंडिंग फी मिल रहा है. तो यस, उस पर जीएसटी लगेगा 1, और जो ये करवा रहा है वो कमीशन चार्ज करेगा, उसको भी कमीशन पे जीएसटी लगेगा 2. गुड, वेरी गुड. मैंने वो एकदम लेंडिंग वर्ड को इग्नोर कर दिया. गुड, गेटिंग माई पॉइंट. करेक्ट शुभम. क्लियर और नॉट क्लियर? Mark this question important. Tell me, is it clear or not clear? अब वो IGST लगेगा, वो तो डिपेंड करता है ना प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन सप्लायर. हाँ विजय बोलो. करेक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस. करेक्ट शुभम. यस विजय. इंटरनेट का क्या होगा? मतलब इंटरमीडियरी का. हाँ, इंटरमीडियरी का क्या होगा? इंटरमीडियरी तो कमीशन चार्ज करेगा, उस कमीशन पे जीएसटी लगेगा. ओके, अब यहाँ पे आरसीएम लगेगा कि एफसीएम लगेगा? कौन बताएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर वो तो डिपेंड करता है 12 लगेगा कि 13 लगेगा. 12 अगर दोनों इंडिया में तो 12, एक इंडिया के बाहर 13. यस, राइट टू यूज सर्विस होता है, बोला ना, राइट टू यूज सर्विस है, इस सर्विस. हाँ, या तो 12/2 या 13/2, एज अ केस में भी. अब आंसर करो, यहाँ पे एफसीएम है कि आरसीएम है? जहां तक सुना है वहां तक आरसीएम है, ठीक है. ओके, तो लेट्स चेक दैट. एक सेकेंड. सी, अगर आरसी में एमसीएम, एक मिनट, पहला पॉइंट जीटीए का है. एक बार जब ऐसे कंफ्यूजन होता है ना तो देख लेना चाहिए. पहला पॉइंट जीटीए का है,
आरसीएम की लिस्ट में, दूसरा पॉइंट लीगल सर्विसेज का है, तीसरा पॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का है, चौथा पॉइंट स्पॉन्सरशिप, पांचवा पॉइंट सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, छठा पॉइंट सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सातवां पॉइंट एफएसआई का है, मतलब इमूल प्रॉपर्टी को लेके है, आठवां पॉइंट लॉन्ग टर्म लीज को लेके है, अगेन 9 डायरेक्टर, 10 इंश्योरेंस, 11 रिकवरी एजेंट, 12 म्यूजिक कंपोजर, 13 कॉपीराइट, 14 आरबीआई, 15 डीएसए, 16 बीएफ, 17 बीसी, 18 सिक्योरिटी सर्विसेज, 19 इज पैसेंजर मोटर व्हीकल वाला, 20 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी एक्सचेंज, आ जाओ यहाँ पे, lend as a person who deposits securities raised in his name in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under SEBI. तो यहाँ पे RCM लगेगा, yes. यहाँ पे क्या लगेगा? RCM लगेगा. Borrower, a person who borrows securities on a scheme through an approved intermediary. Please learn this point. वापस समझो. अब कभी कभी क्या होता है, बेटर वे इज टू लर्न विद द क्वेश्चन. लर्न विद द क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोला है? सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी. अगर आप सिक्योरिटी लेंड कर रहे हो, लेंडर इज अ पर्सन, दैट इज द पर्सन डिपॉजिट सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम, in the name of any other person duly authorized on his behalf, but it should be through an approved intermediary. The borrower, that is a person who borrows securities under this scheme through an approved intermediary of SEBI, will have to pay tax. RCM लगेगा. Good one. आकाश नहीं, विजय. Good one विजय. पर यहाँ कंडीशन क्या है? इंटरमीडियरी होना जरूरी है, एंड दैट बी अप्रूव बाय सेबी. यस. हाँ बाबा, प्रोसीड कर रही हूँ. बच्चे की जान ले लो तुम लोग. यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो. रिफर RCM. ये ऑनेस्टली सच्ची बोलूं, मैंने भी इस पॉइंट को इतना कभी ध्यान नहीं दिया, तो दिस इज अ वैल्यूएशन फॉर मी ऑल्सो. तो आई शुड रियली थैंक विजय. ये हमारे लिए वैल्यूएशन है, ये हमारे लिए वैल्यूएशन हो गया. अभी क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ. बोरोवर पे करेगा, बोरोवर. इंटरमीडियरी तो सिर्फ मिडिल मैन है. जो लेंड कर रहा है वो सप्लायर है, जो बोरो कर रहा है वो रेसिपेंट है. Rob Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into transaction wherein certain securities were to be lent to Dhanadhan Bank. तो धनादन बैंक को लेंड कर रहे हैं. धनादन बैंक shall pay specified lending fee against the lending securities. Really good point. शुभम कोशिश करो, नहीं याद रहते ठीक है, गलत मत लिख के आना. क्लियर? गुड वन. लेट्स गो अहेड. I am impressed. 14. Krishna Dev is a trader based in India. Ramakrishna, brother of Krishna Dev, is located in China and is also engaged in business of trading of goods. Krishna Dev places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from local market in China. Before the shipment of goods from China to India, Krishna Dev sold such goods to Castanio, a trader located in Brazil. The goods are subsequently shipped from China to Brazil. Comment the taxability. Answer करो. Supplier is the one who is lending. तो उसका नाम नहीं दिया क्वेश्चन में, सिर्फ इंटरमीडियरी का नाम दिया है, बोरोवर का नाम दिया है. Read 14 question.
Krishna Dev is a trader based in India. Ramakrishna, brother of Krishna Dev, is located in China and is also in business of trading of goods. Krishna Dev places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from local market in China. Before shipment of goods from China, shipment के पहले ही Krishna Dev sold the goods to Cristiano of Brazil. The goods were subsequently shipped from Brazil to China to Brazil. Mohit, this is not high sea sales. This is not high sea sales, Mohit. High sea sales कब होता? जब चाइना से गुड्स निकल जाता और फिर बिकता तो हाई सी सेल्स होता. समझ में आ रहा है? अभी गुड्स चाइना में ही था और चाइना में मैंने बेच दिया तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया. दिस इज मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन. दिस इज नॉट, क्या लिखा है? HSS क्या लिखा? हाँ, हाई सी सेल्स. करेक्ट करेक्ट. दिस इज नॉट हाई सी. हाई सी सेल्स का मतलब होता है पानी में है गुड्स, मतलब पानी के अंदर नहीं, मतलब बाय वाटर आ रहे हैं एंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है, 200 नॉटिकल माइल्स के उस तरफ है और वहाँ थे गुड्स और आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिया. या आकाश, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है. इसमें यू पीपल मे गेट कंफ्यूज विद आईसी सेल्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. आ गया हाई सी सेल्स वाला क्वेश्चन. Mohandas International entered into a transaction for import of goods from vendor located in Italy. Okay. Due to financial issues, Mohandas International was not in a situation to clear the goods under payment of import duty. Mohandas International sold the goods to Radhakrishna Export by endorsement of titled goods while the goods were on high seas. See, Saurabh, वो अलग बात है, वो थोड़ा छोड़ दो. That is altogether different scenario. Don't mix it over here. The agreement further provided that Mohandas International shall purchase back the goods in future from Radhakrishna Export House. Discuss the taxability of transactions involved over here. Answer करो. आंसर करो. Two transactions, correct. One is high sea sales and दूसरा, पर high sea sales पे no GST. हाँ, पर हाई सी सेल्स पर नो जीएसटी. और जब वो इंडिया आ जाने के बाद आप वापस बाय, उस टाइम पे जीएसटी लगता. Correct? As per Schedule 3, high sea sales transaction and supply of goods by consignee to any other person by endorsement of document of title to goods after goods has been dispatched from the point of origin located outside India, but before clearance of our home consumption will not be considered supply. Further, the import duty including IGST shall be payable by Radhakrishna at the time of clearance of goods. In case the goods are sold back by Radhakrishna to Mohandas at a subsequent point of time, the same shall be treated as normal domestic sale transaction under GST and shall be applicable. Am I clear? Import, राधा कृष्ण को इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा और जब राधा कृष्ण उसको आगे वापस मोहनदास को बेचेगा तो उसको नॉर्मल सप्लाई बोला जाएगा. क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट 16 क्वेश्चन के पहले मैं एक होमवर्क दे रही हूँ. आई वॉन्ट यू पीपल टू रिवाइज एंड कम टुमारो इन एनसीपी में. Correct, correct, correct. Correct, all clear. I want you people to revise tomorrow and come
टेनेंसी प्रीमियम। और अगर नहीं पता हो तो मेरा लेक्चर सप्लाई पे ऑलरेडी है। आई वॉन्ट यू ऑल गेटिंग मी और नॉट। क्योंकि क्या होगा, जब तक तो थ्योरी पता नहीं होगी ना, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगी समझ में नहीं आएगा। होमवर्क फ्रॉम माई साइड, अभी नहीं, अभी नहीं। प्रकाश, प्रकाश, आई एम अज्यूमिंग आपका नाम प्रकाश है, मेरे को प्रक्स बोलना नहीं आ रहा है, या मैं से झा बोलती हूँ। इतना R&D तो करके आओ। वो स्केड्यूल 3 डियर कहाँ से आ गया? हाँ, पगड़ी सिस्टम है। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू डू इट वंस। क्लियर? एक बार इतना करके आओ। 17 क्वेश्चन, थोड़ा तो मैं मेहनत करवा सकती हूँ ना बच्चों से। रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, Ghaziabad, UP, donated some money to a Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father. The Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in the school run by it from such donation and wrote donated by Rudraksh Kapoor in the memory of his father on the door of the room so constructed. Examine whether the money donated by Rudraksh is liable to GST or not. Shubham, please read and come. Mat assumptions लो. I am giving that one question homework. 17A का आंसर बताओ। रुद्राक्ष ने डोनेशन दिया और उसके अगेंस्ट रूम बना और उस रूम के आगे लिखा डोनेट बाय रुद्राक्ष फॉर द मेमोरी ऑफ हिज फादर। क्या इस पे GST लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? गिव मी रीजन, गिव रीजन, गिव रीजन व्हाई नो। एग्जैक्टली, क्योंकि इससे उसको कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा है, इससे उसको कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा है। सी हैज सर्कुलर नंबर था ये, पर अब ठीक है, हर कुछ याद नहीं कर सकते हम लोग। हैज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन recipient's institutional premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy and is not aimed at gaining any publicity to the donor in such manner that it would be advertisement or promotion of his business, that it can be said that there is no supply of service for a consideration. Am I clear? Donation received by charitable organization are treated as concession only if there exists quid pro quo. मतलब उन्होंने नाम लिखा तो सामने लोगों को कमर्शियल गेन हुआ, तो मैं कमर्शियल गेन की सर्विसेज दे रही हूँ और रिटर्न में मुझे कंसेशन मिलता, तो वो डोनेशन पे GST लगता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इज दिस क्लियर? Okay, next question. In the above situation, if Divya Prakash Charitable Trust had returned on the door of the room constructed in the school run by it from the money donated as donated by Rudraksh Publishing House, Ghaziabad, UP, तो क्या आंसर होता? अगर ये लिखा होता तो क्या आंसर होता? फिर यहाँ पे बोलती कि आई एम गेटिंग समथिंग रिटर्न। In the given case, B point Purdue. So, name of Rudraksh Publishing House has been displayed, though it might be aimed as advertisement. The direct mentions publishing house. In such case, it is supply of service by Rudraksh Charitable Trust House for a concession received in the form of donation. Am I clear? तो डोनेशन को फिर क्या नाम दे देंगे? कंसेशन का नाम दे देंगे। Am I clear? Am I clear? Clear?
राइट, कमर्शियल गेन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहा है टू रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने जो डोनेशन दिया, अब वो डोनेशन का कैरेक्टर चेंज होके क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। एम आई क्लियर? हु विल पे टैक्स? एफसीएम। आरसीएम जहां बोला गया है वहीं लगेगा, नहीं तो एफसीएम। Last question, 18th question. I am giving you people time to solve this question. Why? But problem is 2 पेज पे गया है. Why? Tell me, do you all have the soft copy of this question? आप सबके पास सॉफ्ट कॉपी है क्या? या डीसीटी सप्लायर? Do you have soft copy now? Yeah, exactly now. Yeah, you can write a conclusion in your own words. No. अच्छा, you people have not joined the batch. ठीक है. I want 5 minutes. Prakash, let me take a call ना please. इसका फोटो खींचो. Take a screenshot of this part. Take a screenshot of this part. Fast इसका screenshot लो. लिया? Now, solve this question. I am giving you people 5 minutes time to solve the question. क्योंकि ये मैंने कल करवाया है. मैं स्पून फीडिंग करने में बिलीव नहीं करती हूँ. आई एम गिविंग यू पीपल 5 minutes to solve the question. हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? इसका स्क्रीनशॉट लिया? हाँ मालूम है सरोज, है बच्चे जिनके पास नहीं है उनकी बात कर रही हूँ. क्योंकि जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और जिनके पास अभी बुक्स नहीं पहुंची है उनको मैंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करी. जिन्होंने हार्ड कॉपी कल पेमेंट किया है बट उनको बुक्स नहीं पहुंची है. हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? Thanks, Mohit. This is most important. Students जाके बोले that works on more. चलो. Can you see the slides? या आरटीपी क्वेश्चन होगा. मैंने कहीं तो सोर्स लिखा होगा. Are you people trying or not कि मैं चालू कर दूं? Are you people trying or not? Jaskan, a registered supplier of Delhi, has made the following supplies in the month of January. Supply of 20,000 packages of 30 each to Sukhija gift shop in Punjab. ये बंदा किधर है? दिल्ली में. ये किधर है? पंजाब में. Each packet consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottle and 1 packet of balloon. क्या होगा? Section 8 mix supply, interstate supply. स्टार मार्क दिया है. स्टार का मतलब क्या है? ठीक है, रहने दे बच्चे. एक्सक्लूडिंग जीएसटी. एक्सक्लूडिंग जीएसटी. और क्या मिला है अपने को? 2 chocolates, 2 fruit juice bottle and 1 balloon. चॉकलेट, फ्रूट जूस बॉटल एंड बलून. 18% का रेट लगेगा. राइट राइट. तो राइट 18% का रेट लगेगा. तो 6 lakhs का 18%. $1,08,000. IGST $1,08,000.
प्रकाश 28% कहाँ से आया? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, हाईएस्ट वेट लग जाएगा। 10 जनरेटर्स hired out to Moraji Banquet Hall in Chandigarh, including cost of transporting the generators, 1,000 for each generators, from Jaskaran's warehouse to Moraji Banquet Hall. मतलब जसकरण ने, पेनल्टी बाद में देखूंगी मैं, जसकरण ने मोरारजी को 10 जनरेटर्स दिए हैं रेंट पे 250, और हर जनरेटर के लिए 1,000 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किया है। मतलब 250 का ब्रेकअप क्या है? 2.4 एंड 10,000। येस और नो? येस और नो? मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जसकरण जीटीए है? क्या जसकरण जीटीए है? इज जसकरण जीटीए? येस और नो? सरोज, नहीं, जसकरण मोरारजी, दिल्ली चंडीगढ़, 10 जनरेटर्स दिए 250 पे, जिसमें 2,40,000 is towards rent and 10,000 is towards transportation. ओके, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। मैं ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ रही हूँ। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जनरेटर्स फ्रॉम जसकरण वेयरहाउस टू कस्टमर प्रीमाइसेस एंगेज बाय जीटीए। जीटीए ने करके दिया है, और वो क्या चार्ज कर रहा है? 12%। तो जीटीए ने 12% चार्ज किया ऑन 10,000। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एफसीएम। अब मुझे बताओ, ये तो जीटीए नहीं है, क्योंकि जीटीए कौन होता है? जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। तो ये तो जीटीए नहीं है, और जीटीए की सर्विस टैक्सेबल होती है। अदर एंड जीटीए एग्जम्प्टेड है, तो क्या ये एग्जम्पशन हो जाएगा? तो क्या ये एग्जम्पशन हो जाएगा? जसकरण टू मोरारजी क्या एग्जम्प्ट हो जाएगा? हाँ, जीटीए यहाँ पे करेगा। ये लेग 1 हो गया, मैं लेग 2 की बात कर रही हूँ। लेग 2 में 2 चीज हो रही है, एक रेंटिंग और एक ट्रांसपोर्टेशन। लेग 2 में 2 चीज हो रही है, एक रेंटिंग और एक ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? एग्जैक्टली, इट इज कंपोजिट सप्लाई। लगेगा अस्मिता, ये पॉइंट कल भी पढ़ाया था मैंने। लगेगा, कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई रेंटिंग हो गया, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन पे भी टैक्स लगेगा। फिर भी अस्मिता बच्चे गलत जवाब दे रहे ना। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो रेट क्या है रेंटिंग का? 18%। तो 250 पे क्या लगेगा? 18%। वो भी IGST, क्योंकि चंडीगढ़ है। 1 मिनट, क्या आएगा? 45,000। यस अनूप, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड होता तो आरसीएम होता 5% से होता। क्या लिखा मैम? बट दैट कंपोज सप्लाई शुड बी ऑल टैक्सेस सप्लाई। ऐसा किसने बोला आपको? ऐसा किसने बोला आपको कि कंपोज सप्लाई में ऑल टैक्सेबल?
अगर आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, साथ में रहना भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, उसे प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गया? हॉस्पिटल, हेल्थ केयर जो एग्जम्प्टेड है. Is this clear, Prakash? नो नो, आई गॉट अ पॉइंट व्हाट यू वर ट्राइंग टू से. बट मुझे बताओ ना, आज मैं सपोज कौन सा बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ. स्कूल इज एग्जाम्प्टेड, बोर्डिंग इज टैक्सेबल, बस स्कूल के चक्कर में बोर्डिंग भी एग्जाम्प्ट हो गया. कौन से पॉइंट पे आ गए मोहित? तब तक सेकंड पॉइंट ही चल रहा है, थर्ड पॉइंट पे आई नहीं हूं मैं. ओके, थर्ड, 500 packages, each comes with one chocolate, one fruit juice bottle gift to customer. ITC has not been taken. sorry. ITC has not been taken. तो क्या ये सप्लाई है? हाँ कमलेंद्र, प्रैक्टिस, नो सप्लाई. Catering services provided free of cost to brothers business, elder brothers business, without for inauguration. Again, elder brother is not my related party, so again no supply. Clear? Then पेनल्टी लिया है सुखिजा से, 10,000 की पेनल्टी. सुखिजा की पेनल्टी इंक्लूडिंग जीएसटी माना जाएगा, और क्या रेट पे जीएसटी होगा? 18% से. तो 100 एंड सॉरी, ये कितना परसेंट हो गया? क्लियर? इफ आईटीसी नॉट टेकन एंड गिविंग एफओसी टू, हाँ तो वो सेकेंड पैरा में आ जाता मोहित, वो सेकेंड पैरा में आ जाता. वो फर्स्ट पैरा की बात नहीं थी, सेकेंड पैरा में आ जाता वो शेड्यूल 1 के. क्लियर मोहित? एम आई क्लियर टिल हियर? प्लीज कंफर्म. ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूरा डेप्थ में नहीं करवाया, क्योंकि मैंने कल ही सेम टाइप क्वेश्चन करवाया था. आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू डू दिस क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर द क्लास बाय टेकिंग 5 मिनट्स का ब्रेक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 5:30 से मेरे साथ बैठे हैं. हाँ तो 100 into 10,000 divided by 118, 8475. पढ़ना होगा अभिषेक, बहुत सारा पढ़ना होगा. सी एग्जामिनेशन का एक ही तरीका है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ऑल क्लियर? गुड. ऑल क्लियर? ग्रेट. यस आरण्य, क्लियर. एक मिनट, क्या देखने को बोल रहे हो मुझे आप? कौन सा नोट बोल रहे हो? कुछ कौन सा नंबर प्रकाश? अभिषेक, इट्स अ थ्योरी कम प्रैक्टिकल पेपर, तो थ्योरी जब तक पता नहीं होगी प्रैक्टिकल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. आई एम ऑल्सो टायर्ड. प्रकाश, विच नोट यू आस्किंग मी टू सी? लास्ट वाला. नहीं ये तो ठीक है ना, ये मैंने कहा पता है, ये तो सही है, मैंने यही तो बताया है. GTA 2 क्या नाम है क्वेश्चन में? नाम क्या है? X और नेक्स्ट टू Y. यहाँ पे FCM लगने वाला है, यहाँ कंपोजिट सप्लाई है. यहाँ पे बात किसकी कर रही? GTA की बिच की बात चल रही है प्रकाश. हाँ, जसकरण
गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. प्रकाश, आई होप यू गॉट द पॉइंट. जस्ट करना यहाँ जो भी है, जो भी है, मैं इन दो के बीच की बात कर रही है. तो मैंने 12% बोला ही है FCM. आकाश, विच पैरा? हाँ, वो तो मैंने बताया, इट इज नॉट सप्लाइंग. जसकरण जीटी होता अस्मिता, तो फिर जसकरण तो जीटी सर्विस लेता ही नहीं. फिर क्वेश्चन में ये हो जाता, सी फिर क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम, सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता. अगर वो जीटी होता तो फिर वो रेंटिंग वाला काम नहीं करता ना. अस्मिता, फिर क्वेश्चन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी होती तो फिर या तो 12% लगता, तो FCM लगता, RCM लगता, तो 5% लगता. हाँ, अगर जसकरण GT होता नहीं, या फिर उसमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन और लगती मेरे को. ठीक है, ओके. सो आई एम डन विद 2 chapters, and again I am saying, just for your information, this is a new batch which I have started from 10th of October. ये batch is basically, in this batch we are going to discuss question answers. We are going to discuss what question answers, और this is a paid batch है ये. Correct, Webber. Minus 10,000 1526, yes. ये पेड बैच है. टिल वेडनेसडे ये यूट्यूब पे रहेगा, उसके बाद ये पेड प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा. तो ऑलमोस्ट वी गोइंग टू सॉल्व 400 क्वेश्चंस. वी हैव डन विद 2 chapters. Timing is 7 to 8:30 PM, and the fees of this batch is 1,999 with hard copy in black and white, 2,400 if you want colored copy, and 1,500 without middle पर soft copy नहीं मिलेगी. So if you're interested in this batch, please connect on this number 9022911770, 9422124885, 4885, yeah, and 9823019063. Okay, take care, bye bye, sayonara. So do like our channel, do subscribe it, do share it. Okay, take care, bye bye.